Put your attendance, everyone. Very good. Sankalp is remaining, I think. Okay. So we were stuck on this property in the last class, I think, isn't it? So what mistake I was doing is I was subtracting the columns or the rows from the another rows instead of adding. Okay, so addition should be done, मतलब कि यहाँ पे हमें add करना है. Okay, so again हम एक example लेते हैं, similar type का example row transformation का, और उस example की मदद से हम देखने की कोशिश करते हैं कि whether the value of determinant is changing or not. Okay, if you remember this property, I'll just read the property again. If a constant multiple of all elements of a row or column is added to the corresponding elements of any other row or column, then the value of new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. Okay, now see, let me just give you one example. So take the determinant like this. Okay, so this is the determinant. You just try and find out the value of this determinant. इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो. एवरीवन, सब लोगों ने फाइंड आउट करनी है. आर्या, समीर, सूरज, संकल्प, एवरीवन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट. आई होप इट इज नॉट जीरो. If it is, then let me know. Then I have to make changes in the determinant. I hope it is not zero. Okay, so see, 5 multiplied by 6 minus 4 is 2. 2 multiplied by 5 is 10, I think. Minus 1 will be there. 3 minus 8, that is minus 5, and minus becomes plus 5. So it is plus 5 plus 3 is there, and 2 minus 8, that is minus 6. So 18 is there. So I think minus 3 is the value of this determinant. मेरी वैल्यू minus 3 आ रही है. Is it yours also? Are you people calculating? What is your value of this determinant, students? There's no response from anyone. Okay, minus 12 is the value of Samir's. मैंने जो कैलकुलेट किया उस हिसाब से minus 3 वैल्यू आ रही है. Which term? Last term? Okay, let me just calculate the last term again. Okay, so it should be plus 3. Plus 3 is there, and 2. 1 multiplied by 2 is 2. 2 minus 8, that is minus 6. Okay, so minus 6 multiplied by 3 is minus 18, and 15 minus 18 is minus 3. Is it? See, यहाँ पे minus 18 आएगा ना, तो ये 10 और 5 15 हो रहा है. Okay, so minus 3 is the value, I think. Just verify the value. Minus 3 should be the value of this determinant. Okay, so here we go, minus 3. Yes, good. Now we will do row transformation or the column transformation, whichever you say. Okay, so for instance, let us transform the which row? First row, sorry, second row. Okay, so R2 is being replaced by R2 to be replaced by R2 plus R1 करते हैं. 1 R1, यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन मैं यहाँ पे कांस्टेंट जो है मैं 1 ही ले रहा हूँ. ओके, सो R2 इज रिप्लेस्ड बाय
R2 plus R1. Now form the new determinant. 5, 1, 3 is the first row as it is. Now the second row will change. R2 plus R1, that is 1 plus 5 is 6. 2 plus 1 is 3. And 2 plus 3 is 5. So second row is like this. 6, 3, 5. This is 5. Let me just correct it. This is 5. And the last row is 4, 2, and 3. Okay. So now calculate this new determinant. What is the value of this determinant? So I'm also calculating. 3 multiplied by 3 is 9. 9 minus 10 is minus 1. That is minus 5 will be here for the first term. Minus 1 is again there. And 6, 3 is 18. 18 minus 20 is minus 2. Minus minus becomes plus. So it should be plus 2. And the last term is 3. That is plus 3. Plus 3. 6 multiplied by 2 is 12. And 12 minus how much? 12 minus 12, I think. Is it? Yeah, 12 minus 12 is 0. करेक्ट ना? सो 0. तो यहाँ पे 0 आएगा. तो मतलब ये थर्ड टर्म है, ये कंप्लीटली 0 हो रही है. 3 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. सो व्हाट इज आवर आंसर? minus 5 plus 2. So again the answer is minus 3. Is it? Okay. So जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से हमने मैट्रिसेस या फिर डिटरमिनेंट जो फाइंड आउट किया है उसकी भी वैल्यू वही आ रही है, मतलब कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है यहाँ पे. ओके. तो मैंने यहाँ पे सेकेंड रो को ट्रांसफॉर्म किया है. नॉट नेसेसरी सेकेंड रो को ही करना है, किसी कॉलम को भी कर सकते हो, किसी और रो को भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है. सी यू कैन नॉट डू लाइक दिस. आप ऐसे नहीं कर सकते कि C2 इज रिप्लेस्ड विथ C2 प्लस R1. मतलब रो और कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता. इफ इट इज कॉलम हियर देन इट हैज टू बी कॉलम हियर आल्सो. ओके. सो C2 C1 C2 is replaced by C2 plus C1. So this is how the row transformation or column transformation can be done. I hope you people have understood this. Is it? Shall we move further? Shall I wipe out this? Okay. Okay, good. So the seventh property is if each element of the determinant above or below the main diagonal is 0, then the value of the determinant is equal to the product of the diagonal elements. So this is the property that should be remembered कि मतलब किसी कोई भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो या फिर लोअर ट्रायंगुलर डिटरमिनेंट हो, उसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स. मतलब कि हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. जस्ट मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स एंड दैट्स इट. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर डिटरमिनेंट. ओके. सो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस. तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने देखा है कि कैसे करते हैं कि वी हैव टू ऐड एवरी एलिमेंट विथ एवरी अदर एलिमेंट फ्रॉम द सेकेंड मैट्रिक्स. ओके. देखिए ए प्लस बी अगर हमें करना है तो ए आई जे प्लस बी आई जे करना पड़ेगा. मतलब कि ए आई जे इज द element of ij position in A matrix and B is the element of ij position in कैपिटल बी मैट्रिक्स. तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते हैं. एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, लाइक दिस. यहाँ इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो इस चैप्टर मतलब ये जो हम कर रहे थे दैट वाज रिवीजन. सो विद दिस चैप्टर हैज एंडेड. ओके. सो दिस चैप्टर, ये चैप्टर खत्म हो चुका है. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोबेबिलिटी चैप्टर. ठीक है. सो मैं मैथ्स 1 में से सिर्फ ये 2 चैप्टर ही आपको पढ़ाने वाला हूँ. बाकी के सारे चैप्टर्स मंगलम सर जी पढ़ाएंगे. सो लेट मी जस्ट क्विकली मूव टू द 9th chapter, that is probability. Okay, so probability is here, and I think you all know the basics of probability because you have learned it in 9th 10th standard, I think. Okay, you आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी चैप्टर? यस. ओके. तो बहुत सारे बेसिक्स आपको पता रहेंगे. दैट्स गुड. वेरी गुड.
So a random experiment, suppose an experiment having more than one outcome, all possible results are known but the actual result cannot be predicted, such an experiment is called as a random experiment. तो इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट रीडिंग द डेफिनेशंस फॉर यू. ओके, outcome is the a possible result of a random experiment is called a possible outcome of the experiment. Now what is sample space? The set of all possible outcomes of a random experiment is called sample space. The sample space is denoted by capital S or Greek letter omega. The number of elements in S is denoted by n in bracket S, that is number of S. A possible outcome is also called a sample point since it is an element in the sample space. Now sample space क्या है, outcome क्या है, and random experiment क्या है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है. This is just a definition for you. Now what is a event? A event is a subset of sample space. Okay, so event is a subset of sample space. Now favorable outcome, an outcome that belongs to the specified event is called favorable outcome. मतलब कि अगर हमें कोई coin toss करेंगे तो उसके favorable outcomes क्या रहेंगे, either heads or tails. So that is the favorable outcome. Now types of event. Elementary event, an event consisting of a single outcome is called an elementary event. Certain event क्या होता है, the sample space is called the certain event if all possible outcomes are favorable outcomes, that is even event consists of the whole sample space. तो certain event यानी कि उसकी probability what we can say 1 ही रहती है, यानी कि जो samples the event that contains whole sample space, so that is certain event. Now impossible event, that means the empty set is called impossible event as no possible outcome is फेवरेबल. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी है, आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से पता है, इसलिए मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. वी विल स्पेंड मोर टाइम ऑन द प्रॉब्लम्स. ओके, नाउ algebra of events. Events are subset of the sample space. Algebra of events uses operations in set theory to define new events in terms of known events. Now union of two events. Let A and B be two events in a sample space S. The union of A and B is denoted by A union B and is the set of all possible outcomes that belong to at least one of A and B. Now let S is a set of positive integers not exceeding 50 and event A is set of elements of S that are divisible by 6. Again, event B is set of elements of S that are divisible by 9. So find A union B. तो इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? So event A के जो outcomes है, possible outcomes, these are here 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. And event B का जो what we can say set of elements है, that is 9, 18, 27, 36 and 45. So A union B क्या रहेगा कि सारे elements उसमें हम ऐड करेंगे, A के भी और B के भी, that is A union B is the set of elements of S that are divisible by 6 or 9. Now exhaustive event. Two events A and B in a sample space S are said to be exhaustive if A union B is equals to S. मतलब कि अगर उस सैंपल स्पेस में दो ही इवेंट्स है और वो जो दोनों इवेंट्स है दे आर कवरिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, दैट मीन्स these two or those two events are exhaustive events. Now let's take an example of exhaustive event. Consider the experiment of throwing a die and noting the number on the top. Let S be the sample space. तो die throw करने के बाद में sample space क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6. Let A be the event that this number does not exceed 4 and B be the event that is this number is not smaller than 3. मतलब ये नंबर एक तो 4 से बड़ा नहीं होगा, ये पहला इवेंट हुआ, और दूसरा इवेंट क्या है कि ये 3 से छोटा नहीं होगा. तो पहला दैट इज ए इवेंट के एलिमेंट क्या आएंगे 1 2 3 4, बी के आएंगे 3 4 5 6. तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे so it contains the complete sample space, so that's why events
ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, मतलब कि जब हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो उसमें सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, सो दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स. नाउ intersection of two events, let A and B be two events in sample space S. The intersection of A and B is the event consisting of outcome that belong to both the events A and B. Example, let S is equals to set of all positive numbers. अगर हम यहीं पे बात करें, सी अगर हम यहीं पे बात करें A इंटरसेक्शन B की, तो A और B में जो कॉलम कॉमन एलिमेंट्स रहेंगे दैट इज नथिंग बट A इंटरसेक्शन B. तो यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, 3 and 4 आएगा, बराबर. 3 and 4 विल बी द A इंटरसेक्शन B. सो यहाँ पे कुछ अलग एग्जांपल्स दिए हैं. सो इवेंट A जो है, इवेंट A क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S that are divisible by 3, and event B is set of elements of S that are divisible by 5. तो 3 और 5 का मतलब what we can say, जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स है these are 15, 30, 45. मतलब इन 3 एलिमेंट्स को ही 3 से भी और 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज A इंटरसेक्शन B. Now mutually exclusive events, event A and B in the sample space S are said to be mutually exclusive if they have no outcome in common. In other words, the intersection of mutually exclusive events is empty. Mutually exclusive events are also called disjoint events. In simple words, mutually exclusive events means there is no common element between them. Okay, दोनों जो सेट है वो अलग अलग रहेंगे, दोनों इवेंट जो है वो अलग अलग रहेंगे, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, S is the set of all positive integers not exceeding 50. Now event A is set of elements of S that are divisible by 8, and event B is set of elements of S that are divisible by 13. तो 8 और 13 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, बराबर. सो A इंटरसेक्शन B विल बी 5 null. सी दैट इज, थोड़ा सा जूम करता हूं मैं यहाँ पे. A intersection B is 5 or null because no element of S is divisible by both 8 and 13. So these are mutually exclusive events. Now if two events A and B are mutually exclusive and exhaustive, then they are called complementary events. Symbolically, A and B are complementary events if A union B is S and A intersection B is null or phi. Okay, तो ये कंडीशन रहेगी उन दो इवेंट्स के लिए to be mutually exclusive as well as exhaustive. Now notation C, complement or of an event A is denoted by A dash, A bar or A complement. The following table shows the operation of complement, union and intersection can be combined to define more events. अभी एक complement क्या होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि A में इंक्लूड नहीं है. ओके, सो A में इंक्लूड नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस में वो एलिमेंट्स है, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट, इजंट इट. तो ये होता है A कॉम्प्लीमेंट. नो ये कुछ हमें नोटेशन दिया है कि सिंबॉलिकली उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका हमें इंटरप्रिटेशन क्या निकालना है. सो ऐसा कोई सिंबल आता है लाइक A एपोस्ट्रोफिक और A बार और A कॉम्प्लीमेंट, देन नॉट A, मतलब कि A में से A में इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा. नो A यूनियन B इज एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B, मतलब या तो A में या फिर B में वो जो एलिमेंट है वो होने ही वाला है. नो A इंटरसेक्शन B इज बोथ A एंड B, मतलब कि वो दोनों में है, A में भी है और B में भी है. नो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. सो एग्जैक्टली वन ऑफ A एंड B, मतलब या तो फिर A से या फिर B से, दोनों में से नहीं. ओके, नाउ A dash intersection B dash is equals to A union B in A union B whole dash, that is neither from A nor from B. यानी कि देखो A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब कि ना तो A से आएगा और ना ही B से आएगा, लाइक दिस.
सो सॉल्व एग्जांपल्स। सी, यहाँ पे तो सिर्फ हमें सैंपल स्पेस निकालने के लिए बोली है। व्हेन अ कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस डाई के लिए क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 6, एंड कॉइन के लिए रहेगी हेड और टेल। सो दिस इज हाउ the sample space will be there: h1 h2 h3 h4 h5 h6, h for head and t for tail. So this is how the sample space is going to be there. Now second example is Sunita and Samruddhi, who live in Mumbai, wish to go on holiday to Delhi together. They can travel to Delhi from Mumbai either by car or by train or by plane, and on reaching Delhi they can go for city tour either by bus or taxi. Describe the sample space showing all the combined outcomes of different ways they could complete city tour from Mumbai. So देखिए, मुंबई से दिल्ली जाने वाली है वो दो वुमेन्स, सुनीता एंड समृद्धि। तो मुंबई से दिल्ली वो किस तरह से जा सकती है, आइदर बाय कार और बाय ट्रेन और बाय प्लेन। एंड ऑन रीचिंग दिल्ली, जब दिल्ली में वो पहुंचेगी तो पहुंचने के बाद में दे कैन टेक आइदर बस और टैक्सी। ठीक है, तो इससे हमें क्या निकालना है कि सैंपल स्पेस निकालना है कि वो किस तरह से ट्रेवल कर सकती है। तो फर्स्ट विल बी दे कैन टेक कार एंड देन बस, और कार एंड टैक्सी, करेक्ट। नाउ दे कैन टेक ट्रेन एंड बस, ट्रेन एंड टैक्सी, plane and bus, plane and taxi. That means there will be 6 elements in the sample space like this. See, कार बस का मतलब मुंबई से लेके दिल्ली तक का सफर जो है वो कार में तय करेंगे, एंड जब पहुंच जाए दिल्ली में तो उसके बाद उन्होंने बस लेनी है, या फिर कार से जाना है उसके बाद में टैक्सी लेनी है, लाइक दिस। सो दिस इज द सैंपल स्पेस। नाउ 3 coins are tossed. Events E1, E2, E3 and E4 are also are defined as follows. So I think we are going a little bit faster. I think it is not too fast for you, is it? क्योंकि आप लोगों का ये सब कुछ हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को फालतू में बोर ना हो जाए। ओके, सो ये चीजें सारी इजी है, इसमें कुछ मतलब ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बराबर। सो एम आई गोइंग विद द करेक्ट स्पीड or shall I slow down a little bit? I need responses from everyone. Yeah, okay. Suraj is fine with the speed. Okay, good. ठीक है, तो देखो 3 coins are tossed, तो उसका हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद में इवेंट्स क्या क्या है वो दिए हैं। सो इवेंट E1 इज ऑकरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स यानी कि 2 से ज्यादा भी हेड्स आएंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 2 से कम नहीं आने चाहिए। दैट इज आवर E1। नाउ हाउ वी फाइंड E1? सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल स्पेस निकालना जरूरी है। 3 coins are being tossed, so this is the sample space, that is HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH and triple T. Okay, so this is the sample space. Now what is our E1? E1 क्या रहेगा, यानी कि at least 2 heads. It is fine if heads are more than 2. So this will be our event E1, that is triple H, HHT, HTH and THH. Now what is our event 2? Event 2 occurrence of at least 2 tails. So similarly जैसे पहले at least 2 heads था, अभी at least 2 tails है। occurrence of at most 1 head, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, नहीं भी रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए, दैट इज दिस इवेंट। देखिए इसमें एक ही हेड है, एक से ज्यादा हेड नहीं रहेंगे, लास्ट टर्म में तो हेड है भी नहीं। ओके, सो दिस इज E3। नाउ E4 occurrence of 2 heads। नाउ यहाँ पे एग्जैक्टली हमें 2 हेड्स ही चाहिए, तो okay, see, this is the event, that is HHT, HTH and THH. So describe the sample space and events E1, E2, E3 and E4. Find E1
union E4 and E3 complement. Also check whether E1 and E2 are mutually exclusive. E2 and E3 are equal. तो हमें E1 यूनियन E4 निकालना है, बराबर. Now, yeah, E1 union of E4. दिस इज द, मतलब कि दोनों को हमें क्या करना है, सिर्फ दोनों के एलिमेंट्स इसमें ऐड करना है, E1 के भी एंड E4 के भी. और जो एलिमेंट्स डबल डबल हो रहे हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, बराबर. नाउ E3 ये E3 है हमारा, एंड वी हैव टू फाइंड आउट E3 कॉम्प्लीमेंट. तो आई डोंट नो वेदर दे हैव फाउंड इट और नॉट. E3 और यस यस, ये E3 है एंड दिस इज E3 कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे फाइंड किया है. तो सिंबल क्यों नहीं लिखा पता नहीं. E3 का यहाँ E3 कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ना यहाँ पे ऐसे. नाउ what we have to check, we have to check whether E1 and E2 are mutually exclusive, मतलब कि दोनों भी अलग अलग एलिमेंट्स है कि नहीं है, देखना है. इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए. सो यही पे हम ऑब्जर्व करते हैं E1 एंड E2 में. सो इज देयर एनी एलिमेंट कॉमन बिटवीन देम? I don't think so. So they are mutually exclusive. E1 and E2 are mutually exclusive. E2 and E3 are equal or not, that we have to check. So as you can see, E2 and E3 are equal. All the elements are equal. So E2 and E3 are again equal. Now, concept of probability. A random experiment possesses uncertainty regarding the actual result of the experiment, even though all possible outcomes are already known. The classical definition of probability is based on the assumption that all possible outcomes of an experiment are equally likely. Now, equally likely outcomes. All possible outcomes of a random experiment are said to be equally likely if none of them can be preferred over others. Okay, so equally likely elements का मतलब equally likely elements का मतलब क्या है कि ऐसी, if we are tossing the coin, okay, so that is, it is certain it is going to be either head or tails. Okay, but equally likely का मतलब क्या होता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी भी सेम है एज दैट ऑफ टेल्स, मतलब कि 0.5 0.5 दोनों की भी प्रोबेबिलिटी रहेगी. ओके, लेकिन रियल लाइफ में जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बराबर. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज यू आर टॉसिंग द कॉइन फॉर 10 टाइम्स, मतलब कि आपने 10 बार कॉइन को टॉस किया. सो इज इट नेसेसरी दैट 5 टाइम्स आपका हेड आएगा और 5 टाइम्स टेल आएगा? इट इज पॉसिबल दैट 10 टाइम्स आपका हेड ही आ जाए, या फिर 10 टाइम्स आपका टेल ही आ जाए, या फिर 9 टाइम्स, मतलब कुछ भी हो सकता है. लेकिन व्हाट वी कंसीडर की वो दोनों जो है वो इक्वली लाइकली है, मतलब कि उन दोनों की भी ऑकर्स की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करनी है, इसकी एक इसका एक फॉर्मूला है जो कि आई होप आप लोगों को पता है. ओके, सो नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज सैंपल स्पेस. सो दैट विल बी द probability of event A. So n of A is what? Number of A is number of outcomes favorable for event A, and n of S is number of all possible outcomes. So elementary properties of probability. So I would like to suggest you to take your pen and notebook and write down this property with me. Okay, जब मैं जैसे जैसे रीड करूंगा आप लोगों को वैसे वैसे वो लिखना है. Now A complement is complement of A, and therefore probability of A complement is equals to 1 minus probability of A. तो ये जो फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला लिख लीजिए. Everyone write the first formula. Probability of A complement is equals to 1 minus probability of A. It is compulsory for everyone to write. Okay, done. Very good. Now, second is for any event A in S, probability of A will always be between 0 and 1.
सॉरी, सी, किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी रह सकती है? मैक्सिमम 1, मिनिमम 0. नाउ फॉर द इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. तो सेकंड स्टेटमेंट आपने ये लिखा है, थर्ड स्टेटमेंट आप ये लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1. सो ये चार फॉर्मूलेज आपके हो गए, मैंने जिसे अंडरलाइन किया है, ये चार फॉर्मूलेज आप लोगों ने लिखे हैं, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं. एंड यू हैव टू अपलोड दीज फॉर्मूलाज on the classroom, Google Classroom application. Okay, so today itself you have to upload the formulas, so better you write it down. Okay, so चार formulas आपने लिख लिए. Now फिफ्थ वाला जो है वो कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, जल्दी जल्दी. इफ A1 and A2 are two mutually exclusive events, then probability of A union B, sorry, A1 union A2 is equals to probability of A1 plus probability of A2. ठीक है, मतलब कि A1 एंड A2 कैसे है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. A1 and A2 are mutually exclusive. That means they are independent events, separate events है, उनका एक दूसरे से कोई भी ताल्लुक नहीं है. सो उनकी प्रोबेबिलिटी, उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विल बी एडिशन ऑफ दोज these two separate probabilities, that is probability of A1 and probability of A2. तो ये कंप्लीट सेंटेंस लिख लेना है, फिफ्थ वाला कंप्लीट लिखना है, बाकी के चार सिर्फ फॉर्मूला लिखना है. फिफ्थ वाला कंप्लीट स्टेटमेंट आप लोगों ने लिखा है, मैं कंसीडर कर रहा हूं. ओके, shall we take the next property? आप सब लोग लिख रहे हो ना? There is no response from anyone. Okay, write it down, keep responding. So eighth one लिखो, sorry sixth one, अभी sixth one लिखना है ना पहले. So A is a subset of B, then probability of B, probability of A will always be less than or equal to probability of B, and probability of A complement intersection B is equals to probability of B minus probability of A. तो ये सिक्स प्रॉपर्टी है, लिख लो इसे, समझने की कोशिश भी करो कि A जो है वो B का सबसेट है, तो A की जो प्रोबेबिलिटी है वो B से कम ही रहेगी, या फिर रेयर केस सिनेरियो में इक्वल टू रह सकती है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B is equals to probability of B minus probability of A. That is sixth one. I hope you are writing this. Now seventh one, addition theorem. For any two events A and B of sample space S, probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. So this is the basic formula that I think you have already seen in your lower standards, isn't it? 10th standard में, 9th standard में आपने सीखा रहेगा ये फॉर्मूला. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B. चलो लिखो एट्थ वन, फॉर एनी टू इवेंट्स A and B, probability of A intersection B complement will be equal to probability of A minus probability of A intersection B. एट तक सबका हो गया? हैव यू एवरीवन हैज रिटन 8 प्रॉपर्टीज? हैज एवरीवन रिटन 8 प्रॉपर्टीज? ओके ओके आर्या, ओके गुड. सो इनको याद भी करना पड़ेगा आपको. प्रोबेबिलिटी के
प्रोबेबिलिटी के आपको एग्जांपल सॉल्व करने हैं ना, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज एज वेल। एक बार लिख लिया और बाद में उसे अगर आप खोल के नहीं देखोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मूलाज, you should remember these formulas all the time so that you will be able to solve probability examples, otherwise not. Now write the ninth one में भी सिर्फ फॉर्मूला लिख देंगे तो भी चलेगा। probability of A union B union C is equals to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है आपके मेन एग्जाम में 11th के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 9th वन। ओके, सो लास्ट 10th वन लिख लीजिए। if a1 a2 a3 dash 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 up to am are mutually exclusive events in S, then probability of a1 union a2 union dash 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 union am is equals to probability of a1 plus probability of a2 plus probability of a3 and so on up to probability of am। तो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल m इवेंट्स है, m इवेंट की जगह पे हम पकड़ते हैं कि 4 इवेंट्स है या फिर 6 इवेंट्स है। तो 6 इवेंट्स कैसे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। दैट मींस देयर इज नो कॉमन थिंग बिटवीन देम, मतलब उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो जो टोटल एलिमेंट, जो टोटल प्रोबेबिलिटी रहेगी या फिर सैंपल स्पेस रहेगा, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 plus probability of a3 and so on up to the last element or the probability of the last event। ठीक है, so this is again the formula 10th one। 10th का वाला complete सब sentence लिख लीजिए, write down the complete sentence, that is 10th one। written, yes or no? लिख लिया आप लोगों ने? आप लोगों से रिस्पॉन्स आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। गुड, ठीक है। ये जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखी ना 10th वाली, ये 10th वाली प्रॉपर्टी का ही प्रूफ यहाँ पे नीचे दिया है कि किस तरह से अगर कुछ अलग अलग इवेंट्स रहेंगे a1 a2 अप टू an, तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऐड कैसे होती है। एंड लेट अस सपोज इफ n इवेंट्स आर देयर, और अगर हम सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दे तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस। ओके, एंड व्हेन ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स गिवन बाय ai, that is I is equals to 1 2 3 are equally likely, that is probability of a1 is equals to probability of a2 is equals to probability of a3 and so on up to n। ओके, तो फॉर एग्जांपल देखिए, व्हेन वी थ्रो डाई थ्रो करने के बाद में 1 2 3 4 5 6, बराबर, ये 6 आउटकम्स आ सकते हैं। these 6 outcomes are possible। now what is the probability of this element, that is 1/6। इसकी क्या है, 1/6। सभी की क्या है, 1/6 है, बराबर। इफ यू एड देम ऑल तो क्या होगा, 1 होगा, इट विल बी 1। सो यही यहाँ पे बताया गया है। तो हम इसे किस तरह से लिख रहे हैं कि देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, yes, you have to post it on the classroom, yeah, compulsory। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, इक्वल है, प्रोबेबिलिटीज इक्वल है। ठीक है, तो अभी लिखना नहीं है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे,
ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो 10 फॉर्मूलाज आपने लिख लिए है ना, वो 10 फॉर्मूलाज ही आपको अपलोड करने हैं। एवरीवन, आर्या, सूरज, समीर एंड संकल्प, एवरीवन विल बी posting the formulas. Now let's go to the few solved examples. तो पहला एग्जांपल क्या है? If A union B union C is equals to S, A union B union C is equals to S, and A, B and C are mutually exclusive events, can the following represent probability alignment? तो देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी तीनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब कि वो तीनों अलग अलग इवेंट्स है, और उन तीनों का यूनियन क्या बन रहा है? तीनों का यूनियन बन रहा है सैंपल स्पेस। तो हमें वेरीफाई करना है कि इज इट पॉसिबल लाइक दिस। सी, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.7 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज 0.1, तो ये तीनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं क्या, और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? सो देखिए, पहले तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करना पड़ेगा, बराबर। तीनों प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड करना है। नो, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सी, यहाँ पे ऐड कर दिया तो 1 आ गया। इसका मतलब 1 आएगा तो चलेगा, वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। दैट मीन्स दीज 3 इवेंट्स और these 3 values satisfy these 2 conditions, मतलब कि ये A union B union C is equals to sample space की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, and these 3 elements और these 3 events are mutually exclusive, मतलब कि उनमें एक दूसरे में कोई भी रिलेशन नहीं है, they are separate, like see, okay। now जब हम इनकी बात करते हैं तो 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.2, सो इनमें क्या हो रहा है? इनमें ओवरलैपिंग हो रही है। सी, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1.2 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक से ऊपर नहीं आ सकता। अगर हमें बोला है कि A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू S है, तो इट हैज टू बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन का मतलब क्या है? कि इन तीनों के प्रोबेबिलिटी की एडिशन कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो ये 1 तो यहाँ पे हो नहीं रही है, ये 1.2 हो रही है, मतलब कि पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रही है। अभी पहले सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कैसे रह सकते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तभी रहेंगे कि उनमें कोई रिलेशन ना हो और वो सैंपल स्पेस से बाहर भी ना जाए, बराबर। तो ये जो है, ये दीज वैल्यूज डज नॉट सपोर्ट द गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। One card is drawn at a random from a pack of 52 cards. What is the probability that it is a king or queen? So पैक ऑफ कार्ड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको वो जानकारी होगी भी, बराबर। सो देर आर 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स, ओके। 13 कार्ड्स ऑफ डायमंड आर देयर, 13 कार्ड्स ऑफ हर्ट, 13 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स, 13 कार्ड्स ऑफ what is else, spades and clubs, I think, yeah, clubs, remaining 13 are clubs। तो इस तरह से उनकी अलाइनमेंट होती है। सो दिस इज पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो जोकर को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं। वेरी गुड, क्लब सूरज ने सजेस्ट किया था, वेरी गुड। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, तो ठीक है। आफ्टर दैट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी हमें नॉलेज होना चाहिए। सो मुझे आप सब लोग बताइए कि आप लोगों में से किस किस को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन अच्छे से आता है। How many of you know what is permutation and combination? If you know, then put yes. If you don't know, then you put no. Permutation and combination आप लोगों में से, okay, सूरज को आता है, very good, that's very good. Permutation and combination, आर्या, समीर, लिटिल बिट तो ठीक है। आर्या, समीर, आप लोगों को और सूरज तुम्हें भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन रिवाइज करना है। ओके, क्या करना है? रिवाइज करना है। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बता दूंगा,
परमुटेशन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, कॉम्बिनेशन का सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ओके। एंड इट इज वेरी नेसेसरी, जब हमें प्रोबेबिलिटी सीखनी है तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हमें आना ही चाहिए, ओके। सो आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू रिवाइज इट, okay Arya, is it okay with you? Arya, you haven't given any response from last 10 minutes, I think. So will you revise the probability, permutation and combination part? Chalo, Arya is not listening to me. I think she might be facing any network issues, I guess. Okay, ठीक है। सो आर्या, ठीक है, तुम्हें नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हें पढ़ के आना है फॉर नेक्स्ट क्लास, तभी क्लास में समझ में आएगा, ओके। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आता है तो प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे, okay, I understand that you have network problem, that's fine, okay, so you just revise the permutation and combination, every one of you, ठीक है। so I think that's it for today। ये जो एग्जांपल है ये हम कल नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसमें भी कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, तो ऐसे में बताऊंगा तो मे बी आपको कुछ समझ में आ जाए, कुछ समझ में ना आ जाए। तो इससे बेहतर यही रहेगा कि हम क्या करें, हम नेक्स्ट क्लास में इसे ले, जब आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का एक फ्रेश आपने रिवीजन उसकी की होगी, ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।